میرے عزیزو، وقت ہوا چاہتا ہے کہ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں دیکھیں، جس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت لوکا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 29ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک، 29ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے: جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خداوند کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کا پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ با فضل خدا ہم سب خداوند میں آج خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ کہ خداوند کے والہانہ جلوس میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ آج کا دن دین مسیحیت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ روح زمین پر خدا یسوع المسیح مود یسوع نے اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کیا، اور اپنے اس بادشاہی کے سفر میں اس نے کوئی ایسے رتھوں کا، ایسے جانوروں کا انتخاب نہیں کیا۔ جس طرح زمین کے بادشاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ لوگ انہیں جانیں کہ وہ بادشاہ ہیں، مگر آج کا دن مسیح موعود نے ان تمام لوگوں کے سامنے اور پورے انسانیت کے سامنے اپنے آپ کو حلیم بادشاہ کے طور پر پیش کیا، اور اس حلیمی اور فروتنی کا درس ہمیں ملتا ہے ان تمام اناجیل میں۔ جب ہم ان تمام اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع المسیح کی اس قدرت اور عظمت میں غریب اور غربا لوگ شامل ہوئے، اور یہ سفر بڑا عظیم تھا۔ اس سفر بڑا خوشی کا تھا، اور اس سفر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ یسوع المسیح کے ساتھ ساتھ ایک ایسے جانور کا انتخاب کیا گیا جو امن اور صلح کا سفیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا؟ امن اور صلح کا
सफीर कहलाता है, और जो अमन सुलह का सफीर कहलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका और मेरा यीशु अल मसीह है। और इसलिए ये मसीह है मौत कहलाता है, और इस मसीह है मौत की खुशी में आसमान, जमीन और जमीन के नीचे तमाम लोग खुशी कर रहे हैं। होशना का नारा लगाने वाले इंसान हैं, और इनके दरमियान खुदा के फरिश्तेगान भी हैं। ये जो सफर है मसीह खुदावंद का, ये जमीन पर मसीह यीशु का अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश करना, उसकी फतहमंदी को जाहिर करता है। क्योंकि कलाम खुदा में जब हम पढ़ते हैं, जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैत फिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। यरूशलेम का शहाना मुबारक जलूस का जो सफर है, इसका आगाज आखिरी हफ्ते के हालात शुरू होने से पहले होता है। यह हफ्ता खुशी का, शादमानी का, मुबारकबादी का, फतह का, हलीमी और फरोतनी का, तजर्बे का, मगर अगला हफ्ता आजमाइश का है। और यह आजमाइश इंसानियत की है। आज हम खुश हैं, कल हम आजमाइश में होंगे। आज खुशी के झंडे लहराने वाले, होशना होशना के नारे सर बुलंद करने वाले, जब आजमाइश आएगी लब खामोश हो जाएंगे, हाथ रुक जाएंगे, खुशियां मदम हो जाएंगी, मगर मेरे बादशाह के ना चेहरे पर ना बदन पर जरा भी सुकम नहीं होगा। वो आज भी खुश था, वो आने वाले में दिन में खुश था, वो हमेशा खुश रहेगा। इसलिए यीशु अल मसीह जब यरूशलेम से निकले तो यीशु जैतून के पहाड़ की मशरक की तरफ पहुंचे। किस तरफ पहुंचे? मशरक की तरफ पहुंचे, जहां बैतनिया और बैते फिगे वाक़या है। वो यरूशलेम से निकले यैतून की तरफ, यैतून से मशरक की तरफ निकले, बैत फिगिया का सफर तय किया, और कहां आना उन्होंने? बैतनिया में आना है। सबसे पहले एक बात जो हमने समझनी है, एक पहाड़ है जिसका नाम जैतून है। यह जैतून का पहाड़ मसीहत के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, और मसीह मौत के लिए एक कलीदी किरदार रखता है। मत्ती 24 बाब उसकी 3 आयतें मुबारका में लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, कौन बैठा था? कलाम मुजस्सम खरमतुल्लाह, खुदा का बेटा, खुदा का पलौठा यीशु अल मसीह। तो उसके शागिर्दों ने लग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? इस पहाड़ की जो अहमियत है, वो यीशु अल मसीह का बार बार इस पहाड़ पर आना, दुआ करना, शागिर्दों को साथ रखना, शागिर्दों को तालीम देना, और शागिर्दों से हम कलाम होना, शागिर्दों की कफालत करना, और अपने
خدا کا شکر ادا کرنا. زمین کے سفر میں، زمین کی خدمت میں یہ زیتون کا پہاڑ بڑا اہمیت رکھتا ہے. یسوع مسیح بیشتر وقت جب زیتون کے پہاڑ پر گزارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہوتے ہیں. زیتون کے پہاڑ پر یسوع مسیح بیٹھے ہیں اور شاگرد آتے ہیں، یسوع سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں بتا، وہ باتیں بتا جن کا ہونا ضروری ہے اور اس کا آخری نشان کیا ہوگا. یہ تو جو تعلیم دے رہا ہے، جو باتیں تو ہم سے کر رہا ہے، اس کی آخرت تو بتا. یہ باتیں کب ہوں گی اور اس کے نشانات کیا ہوں گے؟ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، مسیح کے علاوہ دنیا کا کوئی نبی یہ باتیں نہیں جانتا جو کلام مجسم یسوع المسیح یہ باتیں جانتا ہے، جو اپنے شاگردوں کو مضبوط کر رہا ہے اور اپنے باپ کی رضا مرضی کو پورا کرتا ہے. اس بڑے واقعہ سے پہلے میں آپ کو زیتون کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. لوکا 19 باب اس کی 29 آیت میں لکھا، جب اس پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے بیت فیگے اور بیتن کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں 2 کو کہہ کر بھیجا. جیسے وہ پہاڑ زیتون کے پاس پہنچتا ہے تو حکم صادر فرما دیتا ہے 2 شاگردوں کو، 2 شخصوں کو، 2 ایمانداروں کو جو مسیح کے اکثر کاموں میں بھیجے جاتے ہیں. اور وہ شاگردوں کا نام نہیں بتایا، مگر ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ یسوع کے لیے اکثر کام کرنے والے 2 عظیم شاگرد تھے. ایک یوحنا تھا اور ایک پترس تھا. اس سے میرا دل، میرا ایمان کہتا ہے کہ یسوع نے ان دونوں کا انتخاب کیا ہوگا اور انہیں کہا ہوگا جاؤ اور میرے لیے سامنے کے گاؤں میں جانا. اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کے تیار ہونا ہے کہ ہم یوحنا بن جائیں، ہم پترس بن جائیں، جو خدا اپنے کاموں کے لیے جب میرا چناؤ کرے، جب مجھے بھیجا جائے تو اس میں پورا اتروں جس طرح شاگرد پورا اترتے ہیں. آج کا دن خداوند میں قائم رہنے کا، پورا اترنے کا، اس کی بات کو سننے کا، اس کی آواز کو سننے کا. ماں ڈالیاں لہرانے سے نہیں، ماں کپڑے پہننے سے نہیں. اگر تم خدا کے شاگرد بننا چاہتے ہو تو اپنی خدمت کو تلاش کرو، اپنے خدا کو جگہ دو اور اپنی روح میں اس کے کلام کو اتارو. خدا کا روح آپ کو خدا کے مقصد میں کامیاب کرے. آج کا دن اس کے مقصد کو کامیابی کا دن کہلاتا ہے. مرکز 13:3 میں لکھا ہے، جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب یوحنا اندریاس نے تنہائی میں ان سے پوچھا، بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی. بار بار شاگرد ان باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو باتیں خدا انہیں بتا رہا ہے. زمین کی باتیں، آسمان کی باتیں، بادشاہی کی باتیں اور جلال کی باتیں. بار بار وہ باتوں کو جاننا چاہتے ہیں. اس لیے تو ہم خدا کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں کہ بار بار خدا کے کلام کو سنیں، بار بار خدا سے دعا کریں، بار بار خدا سے پرستش کریں اور بار بار خدا کے روح سے معاونت حاصل کریں تاکہ خدا کے نشانات کو سمجھ سکیں. آمین. آئیے چلتے ہیں یوحنا کی انجیل میں. یوحنا 12 باب اور اس کی 1-2 آیت میں کہا، پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے، کتنے روز پہلے؟ 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا. یسوع جو ہے یرو سے چلے زیتون بیت فیگے کو کچے انجیروں کا گھر کہا جاتا ہے. بیت فیگے ایک چھوٹا قصبہ ہے، ایک چھوٹا دیہات ہے، مگر وہاں پر جو ہے جو انجیر جو ہیں وہ بکثرت پائے جاتے ہیں. اس لیے یروشلم میں اور پہلے یہودا میں ہے، اسرائیل میں جو ہے پام کے بہت سارے جو ہے نسلوں کے پام پائے جاتے ہیں. آلموسٹ کتاب نویس اور سچکار یہ کہتے ہیں 100 اور 120 126 کے لگ بھگ جو ہے
पाम की अक़साम पाई जाती हैं। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाई, यीशु फसह से पहले बैतनिय्याह में कहाँ आके ठहरे? लाजर के घर में। लाजर वो जिसको यीशु ने क्या किया था? जिंदा किया था। जब मरियम मगदलीनी ने यीशु से शिकवा किया था कि खुदावंद अगर तो यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता, मगर मेरे खुदा ने कहा मारता तो ईमान रख, खुदा का जलाल देखेगी। आज का दिन हमारे लिए ईमान का दिन है ताकि हम खुदा का जलाल देखें। इस पहाड़ पर यीशु मसीह अक्सर दुआ, कलाम, तालीम और के लिए आते हैं। इस पहाड़ की, जैतून के पहाड़ की अहमियत देखें कि यीशु मसीह जब सलीब पर लटके, उन्होंने अपनी रूह खुदा के हाथ में सौंपी और मर गए। कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनको दफनाया गया और वो तीसरे दिन जिंदा हुए, 40 दिन ज़मीन पर रहे और फिर वो आसमान पर उठाए गए। तो वो किस का पहाड़ पर थे? जैतून के पहाड़ पर। किस पहाड़ पर थे? जैतून के पहाड़ पर। इसलिए ये जैतून का पहाड़ हमारे ईमान की भी चट्टान है, हमारे ईमान की भी मजबूती है। इसलिए लोगों ने होशाना के नारे लगाए, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मैं बोलूंगा होशाना, तो आपने कहना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना, होशाना। अभी हमने जैतून के पहाड़ के मतलब सीखा। आगे हम जल्दी जल्दी देखते हैं तो लिखा, जब उस पहाड़ पर जैतून कहलाता बैतफगे और बैतनिय्याह के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जा, उसमें दाखिल होते गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जो है, उन्होंने अपना सफ़र जो यरूशलेम से जैतून, बैतफगे और बैतनिय्याह में आया तो खुदा ने अपने शागिर्दों को भेजा, 2 को भेजा कि कहाँ जाओ? सामने के गांव में जाओ, सामने के इलाके में जाओ, तुम्हें 2 गधी और गधी का बच्चा मिलेगा और तुम उसे खोल लाना। अगर खोलते हुए कोई आपसे सवाल करे, अगर खोलते हुए तुमसे कोई पूछे, ना शागिर्द जानते हैं ना कोई और लोग जानते हैं, यीशु मसीह बैतनिय्याह में है। बैतनिय्याह वो इलाका जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत है। खुदावंद यीशु मसीह को जानने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। 4 दिन के लाजर को जिंदा किया था। वो मुर्दा था, कब्र में पड़ा हुआ था और वो उसने आवाज दी तो जिंदा हो गया। इस सबब से बैतनिय्याह के अक्सर लोग इस मौत से खुदा से मुतासर थे और खुदा का दीदार करना चाहते थे, खुदा से मिलना चाहते थे। कुछ लोगों ने देखा था, कुछ लोगों ने सुना था और लाजर को मरते भी देखा था और लाजर को जिंदा होते भी देखा था और यीशु के साथ चलते भी देखा था। यह खुशी का गांव है क्योंकि यहां पर मौजात हुए। यीशु ने शागिर्दों को भेजा, जाओ और गधी के बच्चे को लाओ। गधी के मां को नहीं बल्कि गधी के बच्चे को लाओ, क्योंकि उस पर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ था। अगर कोई पूछे, अगर कोई सवाल करे, अगर कोई रुकावट पैदा करे तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे जरूरत है, बल्कि आपने फल फौर जो मेरा ना बता देना कि खुदावंद को जरूरत है। अगर बात मेरे आका की हो, मेरे खुदा की हो, मेरे मसीह की हो, मसीह मौत की बात हो, अगर कोई पूछ रहे कि क्यों इसको कर रहा है, तो जब बात आ जाए कि मेरे आका को जरूरत है तो खुदा की कुदरत काम करती है और काफटें दूर हो जाती हैं और खुदा का मौजा होता है और किसी ने रुकावट नहीं डाली। पूछा जरूर होगा, पूछा जरूर होगा। बच्चा आ गया,
गधी का बच्चा यीशु के पास लाया गया, मगर यीशु ने किसी शागिर्द को, किसी शख्स को ये हुक्म नहीं दिया कि इस बच्चे के ऊपर कपड़े डाल दो, इस बच्चे के ऊपर जो है इसकी तैयारी कर दो। मगर क्योंकि सारे अमल का जो मतमन्नी है, इस सारे अमल को जो जानता है तो वो मसीह मौद है। कोई नहीं जानता, ना शागिर्द जानता है। वो बस यही हुक्म लेकर गए थे कि बच्चा लाना, बच्चा लाया गया। मगर क्या किया? खुदा के शागिर्दों ने खुशी से, ईमान से ज़ियाफ़त करते हुए खुदा के लिए इस बच्चे के ऊपर जो है कपड़े बिछा दिए। क्या बता दिए? कपड़े बिछा दिए। आइए मेरे साथ निकालें ज़करिया की किताब और उसका 9वां भाग और उसकी 9वीं आयत। जल्दी से जो निकाले और वो पढ़े, खुदा से बरकत पाए। ज़करिया की किताब उसका 9वां भाग और उसकी 9वीं आयत। आमीन। बेटा साहब निकाला, जिसने जल्दी निकाला वो आमीन करके खड़ा हो जाए। आमीन। आमीन। तशरीफ़ रखे। खुदा यीशु अल मसीह ने हर पेशन गोई को पूरा करना। ज़करिया 9:9 के मुताबिक लिखा है, ए बैते सहून तू नहायत शादमान हो। ये जो बैते सहून है, ये कौन है? ये बैते सहून के किन लोगों से मुखातब किया जा रहा है? ये बैते सहून वो लोग हैं जो बादशाह की नस्ल से हैं, जो काहन की नस्ल से हैं। ये उनके खानदानों को कहा गया है बैते सहून, सहून की बेटी। नहायत शादमान हो, खुशी का, अपनी खुशी को सर बुलंद कर। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, ऐ यरूशलेम की बेटियों, खुदावंद में ललकारो, खुशी करो, शादमानी करो, पुकारो, ललकारो, अपने गलों को फाड़ो। एक तरफ शहंशाह के बच्चों को, उनकी औलाद को मुखातब किया गया है और एक तरफ यरूशलेम की बेटियों को मुखातब किया गया है। एक तरफ मुझे और आपको मुखातब किया गया है, एक तरफ भाइयों को मुखातब किया गया है, एक तरफ बहनों को मुखातब किया गया है, एक तरफ बेटियों को, बच्चों को मुखातब किया गया है, एक तरफ परस्तारों को मुखातब किया गया है, एक तरफ खादमों को मुखातब किया गया है। खुदा सबको वक्त बा वक्त मुखातब करता है। दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह, तेरा नजात देने वाला, तुझे बचाने वाला, तुझे ढांपने वाला, तेरा बादशाह तेरे पास है। मेरा बादशाह मेरे पास है क्योंकि वो मेरे अंदर है, वो मुझसे बोलता है, वो मुझसे कलाम करता है। तब भी वो उनके पास था, आज भी मेरे पास है और आइंदा भी लोगों और नस्लों के पास रहेगा। हम दुख्तरे यरूशलेम की बेटियां भी हैं और हम सहून के बादशाह और उसकी नस्ल से भी हैं। आगे लिखा वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। सादिक वो हो सकता है जिसके अंदर गुनाह ना हो। इसलिए ये जो सादिक है ये कलाम मुजस्सम है, ये कलमतुल्लाह है, ये खुदा को जाहिर करने वाला है, ये मसीह मौद है। यही तो फरमाता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। दो जातें लिए हुए हैं, इंसानी जात जो मेरी नुमाइंदगी करता है, इलाही जात जो अपने बाप को जाहिर करता है। इसलिए इलाही जात और इंसानी जात मिलकर मेरे और आपके लिए नजात का बंदोबस्त करती है। नजात उसके हाथ में है। आगे लिखा वो हलीम और
गदी पर बल्कि जवान गदी पर सवार। खुदावन यीशु मसीह हर एक पेशन गोई को पूरा करता है, वो पूरा करने वाला है। उसकी एक एक उस बात ने उसे पूरा करना है और इसलिए वो बादशाह कहलाता है। वो पैगाम देने वाला भी है, पूरा करने वाला भी है, वो सिखाने वाला भी है, निजात देने वाला भी है। वो मेरे लिए इफ्सी बनने वाला भी है, मुझे निजात देने वाला भी है। इसलिए जब खुदावंत को किसी चीज की जरूरत होती, खुदा खुद हासिल कर लेता है। पर जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा वैसे ही पाया। जब गधी के बच्चे को खो रहे थे तो उसके मालिक ने उससे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हैं? तो उन्होंने कहा, खुदावंत को इसकी क्या है, जरूरत है। ये जकरिया नबी की पेशन गोई 9:9 के मुताबिक क्या हो गई, पूरी होगी कि बच्चे को क्यों खोलते। उन्होंने कहा, खुदावंत को इसकी ज़रूरत है और उसको यीशु के पास ले आए। हम यीशु के पास आए, वो गधे को ले आए और अपने कपड़े जो उनके पास थे, शागिर्दों ने अपने कपड़े किस पर डाल दिए, उस बच्चे पर डाल दिए। कर यीशु सवार किया। जब वो जा रहा तो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। ये सफ़र शुरू होता है बैतनिया से, यरूशलेम को उसने सफ़र को पाया, तकमील तक जाना। इस सारे कारवां का कि जो सारा काम सारा अंजाम दे रहा है वो शागिर्द नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुद तैयारी कर रहे हैं, खुद इस जुलूस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोई नहीं, शागिर्द नहीं जानते, कोई नहीं जानता, यीशु इस बात को जानते हैं। शागिर्दों ने जो करना था कर दिया, कपड़े बिछा दिए और लोगों ने भी और शागिर्दों ने भी अपनी खुशी से अपने बादशाह को तैयार किया। जिस तरह हमारे घर में किसी बच्चे की शादी होती है, बहन भाई जो है खुशी करते हैं, उसे तैयार करते हैं, सेहरा बांधते हैं, गलों में हाथ डालते हैं और अच्छे कपड़े पहनाकर उसे दुल्हन की तरह रवाना करते हैं। इसी तरह मेरा मसीह को खुदा के शागिर्दों ने तैयार करके उस पर बैठा दिया और यीशु ने अपना सफर शुरू किया। अब ये सफर जो है, इस पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा नहीं है। लोगों ने उसे बादशाह के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और बादशाह के तौर पर कबूल किया और होशना के नारे लगाने लगे। और लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। ये मुबारक है, ये खुदावंत के नाम से आया है, खुदा ने इसे भेजा है। इसके अंदर खुदा की कुदरत है, इसके अंदर खुदा की अजमत है। ये आम नबी नहीं है, ये आम बादशाह नहीं है जो घोड़ों पर, रथों पर सवार होकर, अपने साथ तलवारें लेकर, अपने साथ फौजियों को लेकर, अपने साथ एक बड़े लश्कर को लेकर फतह के लिए जा रहा हो, बल्कि ये बादशाह गधी के बच्चे पर सवार होकर आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करके रवां दवा है और यरूशलेम की तरफ ये सफर करता है। आमीन। अगले को उन्होंने कहा, खुदावंत को इसकी जरूरत है, उसको यीशु के पास ले आए, अपने कपड़े उस बच्चे पर डाले, यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा तो कपड़े राह में बचाते जाते। कौन बचा रहे हैं? लोग ईमानदार, जिन्होंने खुदा को देखा है, जिन्होंने खुदा से प्यार किया है, जिन्होंने खुदा को कबूल किया, जैसे जिनकी ज़िंदगी में खुदा बाप ने मौज़ात किए हैं, जो खुदावंत की यीशु मसीह की क्या है, शख्सियत से वाकिफ़ हो चुके हैं। कपड़े राह में बचाते जाते। जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन मौज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगे। शागिर्द है बुलंद आवाज़, बुलंद आवाज़ इस बात का दर्श देते हैं कि खुशी की इंतहा है, खुशी आसमान को छू रही है और खुदा की हम्द करने लगे, खुदा की तारीफ करने लगे, खुदा की सिफतों को बयान करने लगे। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हमारे पास यीशु आए, जब हम यीशु के साथ चले तो हमें भी खुदा की सिफतों को बयान करना चाहिए और खुदावन में खुशी करनी चाहिए।
उन्होंने देखते थे, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। सब करें, मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। किसी नबी ने के बारे में यह नहीं लिखा कि वो खुदावंद के नाम से आता है। दुनिया के नबी को दुनिया में क्या है उनका चुनाव हुआ, मगर ये आसमान से भेजा गया, इसलिए ये मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। आसमान पर सुला और आलम बाला पर जलाल। ये सुला सलामती का शहजादा है, ये जलाल देने वाला है। रसूल फरमाता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर ये जलाल देने वाला है। भीड़ में से बहुत फरीसियों ने उससे कहा है, उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट। फकी फरीसी इस जलूस से जेलस हो गए, घबरा गए और चला उठे परेशानी के आलम में, और यीशु से मुखातब होकर कहा कि अपने लोगों को कह, इन लोगों को कह जो कपड़े बिछा रहे हैं, जो डालियां लहरा रहे हैं, जो फूल बखेर रहे हैं, कि ऐसा ना करें, ये चलाए नहीं। उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं। यीशु ने बड़ी हलीमी के साथ क्या बात की, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर हर दीवार, हर घर, हर पत्थर, हर कोई टुकड़ा वो खुदावंद के लिए तारीफ करेगा, वो खुदावंद का शुक्र करेगा। अगर ये चुप हो गए, जो साथ हैं, जो खुशी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, जिन्होंने मुझे बादशाह के तौर पर कबूल कर लिया, तुम कहते ये चुप हो जाए, ये चुप हो गए तो हर पत्थर, हर घर, हर चीज खुदावंद के लिए चला उठेगी, बोल उठेगी, गूंज उठेगी। देखे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावंद की हम करने लगे। मुबारक वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। आसमान पर क्या होगी, ये सुलह का शहजादा है और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बहुत फरीसियों ने उससे कहा, उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट। उसने जवाब में से कहा, तुम सच कहता अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर भी रोया। एक तरफ खुशी है और यीशु मसीह मौत जब यरूशलेम के पास पहुंचते हैं तो यरूशलेम की हालत ज़ार को देखा यीशु मसीह दुख भी करते हैं। इसी तरह यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों से हमारी हालत ज़ार को भी देखते हैं। मैंने इन्हें इतना प्यार किया, मैंने इन्हें इतनी बरकतें दी, वो हमारी जिंदगियों से भी रोते हैं, वो हमारी जिंदगियों से भी परेशान होते हैं। जिस तरह यरूशलेम की हालत ज़ार को देखा लिखा है कि वो रोए। काश तू अपने उसी दिन में सलामती की बातें जानता। यीशु मसीह ने क्या कहा, काश तू उसी दिन सलामती की बातें जानता, मगर अब तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द क्या हो जाएंगे, मोर्चा बांधेंगे, तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे। ये बातें खुदा ने उन लोगों को, यरूशलेम के लोगों से कहा, इस दिन मैं सलामती की बातें जानता था, मगर अब तेरी आंखों से छुप गई हैं। वो सलामती की बातें, वो बरकत की बातें, वो रहम की बातें छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन फिर आएंगे, तेरे दुश्मन तेरे गिर मोर्चा बांधेंगे। खुदा जानता है कि आने वाले दिन क्या है, इसलिए इन दिनों के बारे में हमें सोचना चाहिए। यीशु अगर हमारी तरफ पेशकदमी करते हैं तो हमें यीशु के साथ पेशकदमी करने चाहिए, क्योंकि यीशु हमारी जिंदगी का हकीकी बादशाह है। जब वो बादशाह है तो उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए खुशी करें, उसको पुकारें, उसको याद करें, उसमें मुलव्वस रहें। वो आपको जलाल से मुलव्वस करना चाहता है,
वो आपकी तामीर चाहता है। आज हम ढालियां नहीं बल्कि अपने दिल की डालियों में देखें, फूलों को अपने दिल के फूलों से देखें। आरजी खुशी नहीं, हकीकी खुशी से अपने खुदा को देखें, क्योंकि खुदावंद एक बड़े मकसद की तरफ जा रहा है और ये मकसद का पूरा होना ज़रूरी है। और इस मकसद के लिए खुदावंद का शैतान के साथ जंग करना ज़रूरी है। आज खुशी है, आज होशाना होशाना के नारे लगाए जा रहे हैं। कल को यही भीड़ यीशु के खिलाफ हो जाएगी, यीशु के खिलाफ बुड़बुड़ाएगी। मगर हमने अपने आप को इसी तरह खुश रखना, इसी तरह वालहाना जुलूस में शरीक रहना, इसी तरह उसकी बंदगी करनी है, इसी तरह होशाना के नारे लगाने हैं और इसी तरह अपने खुदावंद को कहना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमारे अंदर जिंदगी के घेरे तंग हो जाते हैं। यीशु मसीह उस हफ्ते में गुजरने को हैं जिस हफ्ते में गुजर का इंसान के लिए मखलसी नजात, ईमान और रूह का दरवाजा खुलने को है। आज ये बादशाह जमीन पर गधी के बच्चे पर है, सवार है, फिर इसने सलीब पर फतह पाकर हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में, हमारी नस्लों में सवार हो जाना है। और इस बादशाह के आगे आगे हमने चलना है, इस बादशाह के साथ साथ चलना है, क्योंकि ये बादशाह फतह मंद है। ये बादशाह जो है ये दुनिया का नजात दहिंदा है। इस बादशाह के हाथ में नजात है, नजात का छाज है। ये नजात का छाज जिसके हाथ में ये रहम करता है, इसको जब पुकारोगे तो ये आपकी आवाज को सुनने वाला है। ये आवाज को सुनने वाला बादशाह जो है आज मेरी और आपकी नुमाइंदगी करता है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, अपनी जिंदगियों में आज इस पाम संडे की जो खुसूसियात है, जो अजमत है, जो फजीलत है, उसको समझे जाने और अपने बादशाह के लिए खुश रहें, हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुदा हमें देखता है, खुदा हमें पर निगाह मरकूज किए हुए हैं। हो सकता है कि खुदा मुझे बुला ले, हो सकता है खुदा आपको बुला ले, हो सकता है किसी पास्टर को बुला ले, हो सकता है किसी परस्तार को बुला ले और कहे मेरे साथ चल, मैं तुझे जिंदगी की राह दिखाना चाहता हूं। बादशाह मुझे दो जहां मसीह है मौत ने अपने आप को गधी के बच्चे पर सवार करके दुनिया के तमाम उन बड़े रथों को, बड़े घोड़ों को उसने ठुकरा दिया, क्योंकि गधा जो है हलीमी का पैगाम है। अक्सर बादशाह हाथियों पर, घोड़ों पर, बड़ी बड़ी फौज के साथ जब फतह हासिल करते हैं तो बड़ी शान और शौकत के साथ अपने मुल्क में, अपने घर में वापस लौटते हैं। मगर मेरे खुदा का घर हर शख्स है। खुदा ने ना हाथी पर बैठा, ना घोड़े पर बैठा, गधी के बच्चे पर बैठकर उसने आपके लबों में ये वुसअत डाली कि आप उसे बादशाह कहें, आप उसके लिए खुशी करें। इसलिए मैं और आप आज इसलिए बैठे हैं कि मैं और आप उसके साथ हलीम होंगे, मैं और आप इसके साथ फरोतन होंगे, मैं और उसके साथ उसके शहाना जुलूस में शरीक होकर उन बातों को पूरा करना चाहते हैं कि नजात मेरे हाथ में है। इसलिए कि हम मसीह पर ईमान रखने से मसीह की नजात में शरीक हो गए, मसीह के नजात के गवाह बन गए हैं और उसे अपना बादशाह और अपना हकीकी बादशाह तस्लीम कर लिया है। इसलिए हमारी जिंदगी की तैयारी का वक्त है, हमारे ईमान की तैयारी और पुख्तगी का वक्त है, ताकि मसीह को अपना मसीह मौत और नजात दहिंदा मानकर अपने हाथों को उसके हाथों में डालें, उसके चेहरे को तकते रहें, क्योंकि उसके चेहरे से जलाल टपकता है, उसके चेहरे से नूर टपकता है, क्योंकि वो नूर देने वाला है। उठ मनवर हो तेरा नूर आ गया। जिसाया फरमाता उठ मनवर हो तेरा नूर आ गया। ये नूर का बानी कौन है? ये नूर का बानी कोई और नहीं है बल्कि यीशु मसीह है। ज़बूर 24 में लिखा है रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदार बादशाह, एक ही बादशाह है। क्योंकि बादशाह जो है जमीन का नहीं, ये जमीनी सल्तनत नहीं है इसके पास। शैतान ने तीसरी आजमाइश में मसीह ने जब को 40 दिन का रोजा रखा, बियाबान में रहा,
تو 40 دن جب ہو گئے تو شیطان جب پاس آیا تو اس نے 3 باتیں یسوع سے کہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کیا بن جائے؟ روٹیاں۔ اگر تو خدا کا بیٹا تو پتھر کو کیا؟ روٹیاں بن جائے۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ انسان ماں روٹی سے جیتا نہ رہے۔ یسوع مسیح پر آزمائش آئی تو تیسری آزمائش میں کیا کہا کہ میں دنیا کی شان و شوکت، بادشاہی، تاج، مہین گون، سونا چاندی، سلطنت، شہرت تجھے دے دیتا ہوں، مگر تو نے کیا کرنا ہے؟ مجھے سجدہ کرنا۔ کہیں ہم بھی تو آزمائش میں نہیں کہ خدا کے جو حقیقی بادشاہ اس سے ہمیں شیطان دور کر رہا ہے تو ہمیں دنیا کی شان و شوکت دے رہا ہے۔ ہم نے دنیا کی شان و شوکت کو ٹھکرا کر اپنے خدا، اپنی مجھے دو جہاں کی بادشاہی میں شریک ہونا ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو۔ کیا ہو جائے؟ شیطان دور ہو۔ دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ محدود ہے، وقت پر نیست و معبود ہو جائیں گے، مگر آپ اگر زندگی کے بادشاہ کی بادشاہی میں شریک ہونا چاہو تو یسوع نے اپنی خدمت کے آغاز میں یہی کہا تھا، توبہ کرو آسمان کی بادشاہی، توبہ کرو آسمان کی بادشاہی دیکھ ہے۔ یسوع گدی کے بچے پر سوار ہو کر آپ کو یہی درس دے رہا ہے کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔